मॉर्निंग भाई लोग। तो फाइनली मेरी सुबह हो चुकी है। आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, तो चलिए फटाफट मैं अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके, चलिए भाई लोग मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म कर लिया है और वीडियो पे अपलोड कर दी है। हमारा 8वां व्लॉग बहुत ही बेहतरीन है, प्लीज़ जाके देखिएगा। और साथ ही साथ मैं निकल रहा हूँ अपने जिम के लिए, तो चलिए मिलता हूँ आपसे जिम में। लोग मैं आ चुका हूँ जिम, देखते हैं क्या है आज के वर्कआउट में। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. भाई लोग तो आई एम डन विथ माई वर्कआउट। आज का वर्कआउट काफ़ी अमेजिंग था रोज़ की तरह। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, अभी कहीं मुझे जाना है, काफ़ी अच्छा प्लान है आज का, तो वो मैं आप लोगों के सामने अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो चलिए ठीक है, वहाँ पे पहुँच के ही बताता हूँ कि हम लोग का कहाँ जाने का प्लान है। लोग मैंने आपसे जिस सरप्राइज़ की बात की थी वो ये है हमारा सिनेपोलिस मॉल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है मॉल। सरप्राइज़ ये था कि हम लोग गंगूबाई देखने आए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पे और मैं टिकट लेने जा रहा हूं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको इंटरवल में थोड़ा बहुत रिव्यू देता हूं कि कैसी है मूवी। फर्स्ट हाफ तो काफ़ी ज़्यादा दिल बहला देने वाला था, बहला देने वाला था और देख करके तो रूह काँप गई। बट मतलब इंटरवल के स्टार्टिंग में तो काफ़ी रूह काँप गई, लेकिन उसके बाद की मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी देखिए। चलिए बाकी रिव्यू मैं मूवी ख़त्म होने के बाद देता हूँ।
तो भाई लोग फाइनली मूवी ख़त्म हो चुकी है और मूवी बहुत ही अमेजिंग थी। एंड तक काफ़ी अच्छा था। ऑटोबायोग्राफी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांचक और काफ़ी इमोशनल भी कर दिया था मूवी ने। लेकिन काफ़ी अलग ही टाइप की रियलिटी दिखाई गई है मूवी में, जो कि जिसको हम लोग लाइफ टाइम समझ नहीं पाते हैं, वो शायद आप ये मूवी देख के समझ सकते हैं। इसमें एक प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है उसकी, और वो क्या हमारे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है, जिस चीज़ को हम लोग ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। जिस चीज़ को उसको पूरी तरीके से दिखाया गया है कि वो हमारे सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उनकी क्या वैल्यू है। उनको भी सारे राइट्स मिलने चाहिए, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी चलती है सही तरीके से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यही सब दिखाया गया मूवी में। तो आप लोग भी जाके देखिए, काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो और हम लोग आ चुके हैं यहाँ मोटा भाई चाय वाली दुकान पे, जो कि मुंशी पुलिया पर है। काफ़ी अच्छी चाय देते हैं ये। तो हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने सोचा चाय पी के ही चला जाए। तो चलिए ठीक है, चाय की चुस्की लेते वक्त फिर से मिलते हैं आपसे। तो भाई ये है हमारे मोटा भाई की चाय, और रात में 12 बजे हम इसकी चुस्की लेंगे। एक्चुअली 12 नहीं, हाँ ये बोले मिस्टर आलसी, 12:30 बज रहे हैं। तो चलिए ठीक है, चुस्की लेके घर पहुँचते हैं, फिर ख़त्म करते हैं व्लॉग और मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग आ गए आप लोग, मैं बस वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने सोचा चलिए अपना आज का व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। मैंने अपना मॉर्निंग और नाइट रूटीन तो रोज़ का है, तो मैं नाइट रूटीन ख़त्म भी कर चुका हूँ, सिर्फ दूध पीना बचा है। और साथ ही साथ आज हम लोग ये सब कुछ करने के बाद आज मेरा वर्कआउट काफ़ी अच्छा रहा। वर्कआउट के बाद फिर आज हम लोग मूवी देखने गए, गंगूबाई काठियावाड़ी। काफ़ी अच्छी मूवी थी। मूवी का मैसेज बहुत ही प्यारा था। नॉर्मल आदमी, हम लोग की लाइफस्टाइल में हम लोग काफ़ी चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि सबके लाइफ का बहुत सी चीज़ें हिस्सा नहीं होती हैं। बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें बहुत सी चीज़ें समझनी चाहिए, जो कि हमें ये मूवी समझाती है। मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी देखे मूवी पर, जो कि यूट्यूब पे सिर्फ इस चीज़ बेसिस पे बनाए जाते हैं ताकि हमें व्यूज़ मिले, हमें क्या बोलते हैं, लोगों की लाइमलाइट मिले, गाली दे करके और ये सब करके वीडियोज़ पे लाइमलाइट इकट्ठा करना मेरे लिए वो ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज़ का रिव्यू दे रहे हो तो आप सही तरीके से दो। आप जनता नहीं खींच पा रहे हो कोई बात नहीं, बट आप बात सही बोलो। तो मेरे लिए पहली बात तो मेरे लिए, मैंने लाइफ में बहुत सी मूवीज़ देखी हैं। अराउंड मैं थिएटर जाके हज़ारों मूवियाँ देख चुका हूँ, बट आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे कोई भी मूवी घटिया नहीं लगी। क्योंकि किसी भी मूवी को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही साथ बहुत से लोगों की मेहनत होती है, क्योंकि मूवी बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने देखा है क्रिटिक्स और लोग बहुत ही ईजिली कह देते हैं मूवी बहुत बेकार थी और ऐसा कुछ। बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मूवी देखी, मुझे आज तक पहली बात तो कोई मूवी घटिया नहीं लगी है। और अगर मैं सिर्फ इस गंगूबाई वाली मूवी के बारे में बात करूँ जो मैं आज देख कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। इसका मैसेज ये था कि हमारी सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग उन्हें ऐसे ही गलत नज़र से देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि हमारी सोशल नॉर्म्स है इंडिया के, जैसा कि लोगों को लगता है कि यार ये तो टाबू है। बट पता है हमारी सोसाइटी में टाबू भी हम ही बनाते हैं। बट पता है जिन जिन चीज़ों को हम सोसाइटी में टाबू मानते हैं, उनका अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है, गंगूबाई एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक बायोपिक है, काफ़ी अच्छी बायोपिक है। और पहली बात तो मुझे संजय लीला भंसाली की आज तक कोई भी मूवी बेकार नहीं लगी, मुझे उनकी सारी मूवी बहुत अच्छी लगती है। लोग उसमें अपना धर्म घुसा देते हैं, अपनी चीज़ें घुसा देते हैं। देखो पहली बात तो मूवीज़ बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, बट बायोपिक हमें इंस्पिरेशन देने के लिए बनती है। मैं मानता हूँ उसमें कुछ फिक्शन किया गया है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हटाया गया है जैसा कि रहा होगा, बट उसकी जर्नी मायने रखती है। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये देखना चाहिए। किसी भी मूवी में, किसी भी चीज़ में हमें उसके मॉरल पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि भाई मूवी में ये गलत था, वो गलत था, ये फिक्शनल था। हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उसने बायोपिक में क्या दिखाया क्या नहीं, हमको इससे मतलब है कि उससे हमें सीखने को क्या मिलता है। और मेरे हिसाब से हमें इस मूवी से ये सीखने को मिलता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, कि हमारे सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इस प्रोस्टिट्यूशन की वजह से बहुत से रिश्ते बच जाते हैं, चलते रहते हैं। हमारे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने रेप्स हो रहे हैं, आपको भी पता है। अगर प्रोस्टिट्यूशन ना हो तो इन रेप्स के नंबर कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे सोसाइटी में, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लोग तो कहेंगे लोगों को अपनी सोच सुधारनी चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए, बट भाई बायोलॉजिकली दिस इज रियली वेरी बेकार की बात है कि भाई क्या बोलते हैं, लोगों को सोच सुधार दो तो रेप होना बंद हो जाएगा। यार इट्स अ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, जो कि सबकी होती है, राइट। तो प्रोस्टिट्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में। उनकी वजह से रेप रेट कम रहते हैं, जितने भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम है या हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं।
नहीं होने चाहिए, बट इनकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। तो एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जाके देखें और अपना रिव्यू मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर।